تندرست رہتا ہے، وہ صحت مند رہتا ہے، اور شیطان کی کوئی بھی یکتی جو ہے وہ اس پر سفل نہیں ہوتی ہے۔ آج ایک اسپیشل دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ نرسز ڈے۔ کیا ہوتا ہے یہ؟ فلورنس نائٹنگیل کا برتھ ڈے۔ فلورنس نائٹنگیل کا برتھ ڈے۔ فلورنس نائٹنگیل کا برتھ ڈے۔ تو آج نرسز ڈے ہی نہیں ہے، انٹرنیشنل نرسز ڈے۔ سارا سنسار جو ہے وہ آج کے دن کو مناتا ہے۔ خدا کے حکموں کے مطابق جیسے جیسے لوگوں کو ویژن ملا، جیسے جیسے لوگوں کو خدا کی کال آئی، جیسے جیسے خدا نے لوگوں سے بات کی کہ میرے بنائے ہوئے بندوں کی سیوا ٹہل میں لگ جاؤ، تو جن جن لوگوں کو بلایا وہ اس سیوا ٹہل میں لگ گئے، اور ان میں سے ایک فلورنس نائٹنگیل کا آج برتھ ڈے ہے۔ شی از اے فاؤنڈر آف دا نرسنگ پروفیشن، دا لیجن پروفیشن، نوبل پروفیشن کی وہ ہے رچائتا ہے۔ انہوں نے ہم سب کو انیشیٹ کیا ہے کہ خدا کے دیے ہوئے کاموں میں لگ جائیں۔ جیسے جیسے آگے آج کا دن بیتے گا میں اپنی باتوں میں آپ سے بات چیت کرتا رہوں گا۔ تو آج کے اس دن کے لیے میں آپ سب کو ہی مبارکباد دیتا ہوں۔ خدا نے آج بہت اچھا دن بنایا ہے، بڑا ہی خوبصورت دن بنایا ہے، اور اس خوبصورت دن کو بنا کر کے آج اسپیشل طور پر نرسز کے لیے دے دیا۔ انٹرنیشنل سارے جہان میں جو نرسنگ پروفیشن کے لوگ ہیں ان کو یہ دن دے دیا ہے، اور اس دن کے پیچھے ایک مہتو ہے، اور وہ مہتو میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں کہ ہم اس دن کو کیوں مناتے تھے۔ سارا سنسار آج مناتا ہے، پہلے یہ ایک دن تھا، اب ایسا بڑھ گیا ہے کہ اب سارا ہفتہ ہی چلتا رہتا ہے، اور آج کل ہم اسے انٹرنیشنل نرسز ویک کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ 12 تاریخ سے شروع ہوتا ہے، 18 تاریخ کو جا کر کے ختم ہوتا ہے، اور آج کے بعد آپ ہاسپٹل میں چہل پہل دیکھیں گے، کچھ اسٹوڈنٹ نرسز تھوڑا سا، بیکاز آئی ایم آلسو دی پارٹ آف دیٹ، تو آج نیا کوٹ پہن کے آیا ہوں ٹو ٹیل یو، آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آئی ایم دی پارٹ، میں اس دن کا ایک حصہ ہوں، اور مجھے اس دن میں خوش رہنا ہے، خرم رہنا ہے، شیطان کی یکتیوں سے بچ کر کے جس کام کے لیے مجھے خدا نے یہاں پر بھیجا ہوا ہے نا، میں نے اس کام میں لگ جانا ہے۔ خدا ہم سے چاہتا ہے، God desire us to be caring۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے بندوں کی سیوا ٹہل کریں۔ سوال اٹھتے جائیں گے، جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ کیا آج کی تاریخ میں ہم خدا کے بنائے ہوئے بندوں کی سیوا میں ہیں؟ آپ آج کی تاریخ میں جب آپ کسی مریض کے پاس جاتے ہیں، اس کو دوائی دینے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کا بیسک ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ وہ مریض آپ کے ہاتھوں سے دوائی کو کھا لے، تاکہ خدا کے فضل سے وہ دوائی اس پر اثر کرے اور وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے۔ صرف اسے کہہ دینا یہ دوائی پڑی ہے کھا لینا اتنا کافی نہیں ہے۔ آج کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے، God desire us to be caring for others۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کی کیئر کریں، دوسروں کی سہایتا کریں، دوسروں کی مدد کریں، انہیں مضبوط کریں، اور اس کام کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو چنا ہوا ہے۔ آپ کو اس انسٹیٹیوٹ میں رکھا، اس لیے رکھا ہے، آپ کو چنا ہوا ہے کہ آپ اس سیوا والے کام میں لگ جائیں، ارپت ہو جائیں، سمرپت ہو جائیں اس کے لیے۔ آج بائبل کیا بتاتی ہے؟
खुदा ने इस नर्सस पे को कैसे अपने साथ जोड़ा हुआ है, आज इसके बातचीत होगी आपके साथ। तो पहले निकालेंगे कि सबसे पहली बात यह है कि खुदा ने हमारी बीमारियों को सह लिया। अस्पताल बीमारी के लिए होते हैं ना, बीमारी के लिए होते हैं ना। बीमार आता है, उसे हम कंफर्टेबल पोजीशन में रखते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, और ताकि सही निशाने पर तीर लगाया जाए और जो बीमारी है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और खुदा उस बंदे को उठा के खड़ा करे और कूदता फांदता दौड़ता हुआ यहाँ से जाए और खुदा की महिमा और खुदा की तारीफ में गीत गाता हुआ जाए। हम ये अभी हमने गीत गाया है कि क्या गीत था, अभी हमने गा रहे थे कौने की खुदा की सिफ्त होती चली जाए, ये चंगी रीत है। तो उसने हमारे रोगों को सह लिया है। देखिए, खुदा ने हमारे रोगों को सह लिया है, तो हमें भी दूसरों के रोगों को सहना है। हमें बाइबल के साथ इसे जोड़ूंगा आज, आप जो लोग नोट कर रहे हैं नोट करते चले जाएं। उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने हमारी सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। आज इस मेडिकल प्रोफेशन के साथ बाइबल को जोड़ूंगा कि हमें एक ऐसा प्रोफेशन क्यों बना के खुदा ने हमारे सामने रखा है और हमें चुन लिया। आपको सफ़ेद कपड़े दिए गए हैं ना कोई झुर्री, ना कोई दाग, ना कोई कालखपन, उज्ज्वल उज्ज्वल कपड़ों में आपको लपेटा हुआ है, तो आपको उज्ज्वल बनना भी है अंदर से। सिर्फ कपड़े ही नहीं, आपके जिस्म जो है वो भी उज्जवल हो जाना चाहिए। आज की तारीख में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, उसने हमारे दुखों को उठा लिया। यशायाह की किताब का जिक्र हो रहा, यशायाह 53:4-5 का जिक्र। उसने हमारे गुनाहों को उठा लिया है, वो हमारे गुनाहों की खातिर जख्मी किया गया है। आज खुदा के कलाम को मैं नर्सिंग प्रोफेशन के साथ जोड़ रहा हूँ। आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? ये हॉस्पिटल यहाँ पर क्यों बनाया गया? इसके बुलंद दरवाजे और सारे स्टेप्स क्यों बनाए गए हैं? उसके साथ जोड़ रहा हूँ। यशायाह 53:4 है जी, वो हमारे गुनाहों के लिए जख्मी किया गया है, हमारे बुरे कामों के लिए वो कुचला गया है, वो बीमार हो गया है, शरीर पर जख्म ही जख्म हो गए हैं, तकलीफ में हो गया है, दुखी हो गया है, wound ही wound, he was filled with the wound। 4 के 4,500 जख्म थे उसकी बॉडी पर। यहाँ एक हो जाए तो बंदा तड़पने लग जाता है। 4,500 के 5,000 जख्म उसके जिस्म पर लगे थे। उसने वो हमारी खातिर कुचला गया, उसके मार खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। आज हम उस प्रोफेशन में हैं, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा सा आगे जाकर के पढ़ेंगे। खुदा का कलाम कहता है कि आपको इनिशिएटिव देता है कि मैं जख्मी लोगों के घावों पर पट्टियां बांधूंगा। अगर खुदा जख्मी लोगों के पट्टियां बांध सकता है तो व्हाई नॉट बी कीपर। आज कतराने की जरूरत नहीं है। मरीज आ गया, स्ट्रेचर पे है, जिसकी ड्यूटी है वो देख लेगा, जिसकी ड्यूटी है वो आ जाए। मैं क्या करूं? जब तक बताया नहीं जाएगा, कोई आएगा बताएगा तब तो काम शुरू हो जाए, तब तक तो उसका आधा लहू जो है ना वो जिस्म से बह जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चे और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आप प्रेशर दे करके एक बैंडेज तो बांध सकते हो, उस प्रेशर से खून बंद हो जाए। BTCT एक शब्द आता है, ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम। तो ब्लीडिंग टाइम में ब्लीडिंग होगी, खुदा का रहम है, खुदा का कर्म है कि BT के बाद क्लॉटिंग टाइम शुरू हो जाता है और खून अपने आप बंद होना शुरू हो जाता है।
फुटी चाहिए, आपकी प्रेजेंस चाहिए। मैं जख्मी लोगों के जख्मों को बांधूंगा, मैं चोटों पर पट्टियां बांध दूंगा और बीमारों को चंगा करके बलवान बना दूंगा। आज मेरी शिक्षा भी आप लोगों को कि आपको ऐसे ही करना है, जैसे खुदा कहता है आपको वैसे ही कामों में आगे जाना है। हिजकिय्याह नबी की किताब निकालेंगे, उसका 34 अध्याय है, उसकी 6वीं आयत का बीच वाला हिस्सा, मिडिल पार्ट की जो लाइन है वो सिर्फ पढ़ेगा, एक ही लाइन पढ़ेंगे। हिजकिय्याह 34:16 का बीच वाला हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं जख्मी लोगों के जख्मों पर पट्टियाँ बांधूंगा, ये खुदा का कलाम कहता है। खुदा खुदा होकर के जख्मी लोगों की पट्टियाँ बांधता है, उनके जख्मों पर चंगा करता है। मिल गए? बीच वाला हिस्सा पढ़ेंगे। 34 बाब की 16 आयत का बीच वाला, 3 हिस्से हैं उसके, बीच वाला हिस्सा पढ़ेंगे। मैं घायलों के घाव बांधूंगा, ये खुदा का कलाम कह रहा है आपसे। मैं घायलों के घावों को बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा, और जो मोटी और रुग्ण है, मिडिल पार्ट होगा, बीमारों को चंगा करके उन्हें बलवान बना दूंगा, उन्हें मैं हष्ट पुष्ट बना दूंगा। यिर्मयाह 30 की 17 का पहला हिस्सा, मैं तेरा इलाज करूंगा, खुदा कहता। आज जितने लोग अस्पताल में बीमार पड़े हैं ना, उनको जाकर के एक शब्द कहिएगा, खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा फरमाता है, पवित्र 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 प्रभु फरमाता है, मैं तेरा इलाज करूंगा, मैं तेरा इलाज करके तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरी चोटों को, तेरे घावों को चंगा करूंगा। ये यहोवा परमेश्वर की वाणी है, ऐसा ही लिखा हुआ है यिर्मयाह 30:17। मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है। आज जितने लोग दवाई खाते हैं ना, स्टाफ में से, स्टूडेंट्स में से, आज इस आयत को याद रखिएगा, मैं तेरा इलाज करूंगा। खुदा कहता है मैं तेरा इलाज करूंगा, मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा, तेरी चोटों को चंगा करके तुझे बलवान बना दूंगा। ये खुदा की वाणी है, ऐसा ही लिखा हुआ है, पढ़ें जरा, पूरा करें। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा परमेश्वर की वाणी है, उसका कलाम है, उसकी बातचीत है, जो आज आपसे इंटरनेशनल नर्सेस डे के वसीले से पेश हो रही है। आज के दिन को याद रखिएगा कि आज इस दिन हमने बाइबल में से देखा था कि कहाँ कहाँ पर खुदा ने खुद अपने हाथों से मरीजों का इलाज किया है। आज मैं आपसे कहता हूँ कि जहाँ तक मौका मिले ना, मरीज पता नहीं किसके हाथों से ठीक हो जाए, मुझे नहीं मालूम। आप में से मैं नहीं जानता कि किसका हाथ लगते ही मरीज ठीक हो जाएगा। आप तो हाथ लगाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। पता नहीं किसके छू लेने से मरीज चंगा हो जाएगा, किसके टच करने से मरीज ठीक हो जाएगा। मुझे किसी ने छू लिया है और छूने से मरीज चंगे होते हैं। उस औरत को डॉक्टर ने मना कर दिया तो तेरा कोई इलाज नहीं होगा, पर उसको ख्याल आया, उसको आज की बाइबल की ये हिस्से जो हैं वो याद आ गए कि अगर मैं उसे छू लूंगी ना तो ये हो जाऊंगी। और एविडेंस आपके सामने, उसने जाकर के उसके खुदा को भी नहीं छुआ, उसके पल्लू को छुआ। उसके पल्लू में ताकत है, उसके पल्लू में सामर्थ भरी हुई है, और वो सामर्थ उसने आपको दी हुई है, आपके हाथों को दी हुई है। ना जाने कब आपका हाथ लगते ही ना मरीज हष्ट-पुष्ट हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। ये खुदा की बातें हैं। खुदा जब तक, जहां तक आपको मौका मिले, आप खुदा के बनाए हुए बंदों की सेवा में लग जाएं। मरीज के पास जाएं, उससे बातचीत करें, उसको छुएं, उसको दिल से ईमान से, जैसा खुदा हमें सिखाता है। खुदा कहता है मैं तेरे घावों को बांधूंगा। खुदा
कैसे बांधेगा? वो आपके ज़रिए से आपके हाथों में आ जाएगा। और जब आप खुदा के बनाए हुए बंदे के पास जा करके उसके घावों को बांधेंगे ना, उस समय खुदा खुद वो काम कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं तेरे घावों को बांध दूंगा, मैं तेरे जख्मों को पट्टी बांधूंगा और तुझे बदवान कर दूंगा, तुझे मैं चंगा कर दूंगा। गलतियों की किताब है जी, गलतियों 6:10 का पहला हिस्सा है। खुदा आज आपसे कहता है, खुदा आपसे कहता है, डिजायर दैट यू केयर फॉर अदर्स। खुदा चाहता है कि आप दूसरे लोगों की केयर करें, मरीजों की केयर करें। ना जाने कब आपका हाथ लगते ही मरीज बीमारी के बिस्तर से उठ खड़ा होगा, और तब आपका ये इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाना जो है ना, वो कारगर साबित हो जाएगा। तब आप कह सकेंगे, टुडे इज माय डे, टुडे इज अ नर्सेस डे, टुडे इज इन माय डे, एंड आई गिव माय डे टू माय पेशेंट्स। इट्स गॉड्स डिजायर, ये खुदा की चाहत है कि आप दूसरे लोगों की केयर करें, उनकी भलाई करें। जब तक, खुदा का कलाम आज कहता है कि जब तक आपको मौका मिले ना, लोगों की भलाई में लगे रहे। यही आपके साथ जाना मिल गया। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। जहाँ तक आपको मौका मिलता है दूसरे लोगों की भलाई में लग जाए। भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो आगे मैं नहीं बोलूँगा। आप लोग बहुत सियाने लोग हैं, बुरा करोगे तो मैं आगे नहीं बोलूँगा क्या होगा। जब तक मौका मिले भलाई करते हो, चाहे सज्जन हो, चाहे मित्र हो, चाहे दोस्त हो, यहाँ तक कि अगर दुश्मन भी आ जाए तो उससे भी मोहब्बत रखिए, उसकी भी भलाई करें। मरीज एक मरीज है, उसको एज ए पेशेंट सर्व करें, एज ए पेशेंट उसको डील करें। आज इंटरनेशनल डे जो है ना, इंटरनेशनल नर्सेस डे, आपसे यही डिमांड करता है। खुदा ऐसा नहीं है कि वो आपके कामों को भूल जाए। उसके पास हर एक काम का प्रतिफल, हर एक काम का इनाम है उसके पास। वो आपके हाथों की किए गए मेहनत को कभी बेफायदा नहीं जाने देगा। तो जो परिश्रम आज आप कर रहे हैं ना, उसका फल आपको मिलने वाला। इब्रानियों की पत्री है, उसका 6 बाब, उसकी तो पढ़ेंगे नहीं, बस मैं बता रहा हूँ। इब्रानियों 6:10 में लिखा है, खुदा ऐसा नहीं है कि वो आपके कामों को भूल जाए। जो सुबह से लेकर शाम तक आप परिश्रम करते हैं, मरीजों की सेवा में लग जाते हैं, खुदा ऐसा नहीं है कि वो आपके कामों को भूल जाएगा। You are worthy to be honored। आपको इस काम का प्रतिफल मिलने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। आपके इस काम का श्रम जो है, प्रतिफल जो है, इनाम जो है, वो मिलने वाला है। यू आर वर्दी टू बी ऑनर्ड। दिन आ जाएगा कि आपको ऑनर किया जाए। इंटरनेशनल नर्स डे पर जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बहुत ऑनर किया गया, मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर है वो, और आज उसका इतना बड़ा नाम है कि पूरा संसार आज उसके बर्थ डे पर इस दिन को मनाता है, और हम भी सभी उसमें शरीक हैं। मैं डॉक्टर साहब का, इस इंस्टीट्यूट का बड़ा ही धन्यवादी हूँ कि वो हमारे साथ मिल करके इस सारे प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हैं और हमें इनिशिएट करते हैं कि करिए, ताकि लोग भी जानें कि आपको एक ऐसे प्रोफेशन में लाया गया है, आपको सेवा का मौका मिला है, आप हीलिंग में हैं, आप तंदुरुस्ती देते हैं मरीजों को, आप टीचिंग करते हैं, आप प्रीच करते हैं। ये तीनों चीज़ें ही बड़ी जरूरी, और किसी प्रोफेशन में ऐसा नहीं। सिर्फ एक यही प्रोफेशन है, मेडिकल नर्सिंग प्रोफेशन एक ऐसा है कि 3-fold मिनिस्ट्री। आगे आने वाले जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं बाकी बातें आपसे करूँगा। पहला क्रंथियों 15:58 में लिखता है, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, खुदा के कामों में मजबूत हो जाओ, अपने आप को और दृढ़ कर लो,
दिए गए हैं ना, आज्ञाकारिता के साथ उन कामों में लग जा। आज के दिन का यही एक मैसेज है कि खुदा ने आज का दिन बनाया है, खूबसूरत दिन बनाया है, और वो आज स्पेशल तौर पर संसार की सारी नर्सिंग प्रोफेशन को दे दिया है कि तुम इसमें खुश हो जाओ, मेरे बनाए हुए बंदों की सेवा करो। आज इंग्लिश की एक ही लाइन से इस आज के एपिसोड को बंद करूंगा। गॉड डिजायर यू टू बी केयरिंग फॉर अदर्स। खुदा चाहता है कि आप खुदा के बनाए हुए बंदों की केयर करें, उनकी सेवा में लग जाए। खुदा आपको बरकत दे। यहीं पर आज का मॉर्निंग डिवोशन शुरू करता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा बाप के नाम। खुदा आपको सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आपको आशीष दे। आज का दिन मैं फिर से आपको मुबारकबाद देता हूँ। आज का दिन आपके लिए बहुत ही खुशियाँ वाला हो जाए। इस हॉस्पिटल को मुबारकबाद देता हूँ, इस इंस्टीट्यूट को मुबारकबाद देता हूँ, इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ, और सारे स्टाफ और सारे स्टूडेंट्स को भी आज के दिन की मुबारकें देता हूँ। सारे सबको मुबारक मुबारक मुबारक। आज का दिन आपके लिए मुबारक हो। मैं हाथों को जोड़े, अपनी आंखें बंद कर, और आज इस खास दिन के लिए, खास वक्त के लिए, इंटरनेशनल नर्सेस डे के लिए, हमारी नर्सेस के लिए, खुदा के टच के लिए, खुदा के स्पर्श के लिए, और इस डिज़ायर के लिए कि खुदा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बंदों की सेवा में लग जाओ। मैं चाहता हूँ दुआ जी हमारे लिए एक छोटी दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे, और उसके बाद हम दुआए रब्बानी में चले जाएंगे। दुआ जी। आनंद प्राप्त करें।